بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، پڑھیے درود شریف، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الله عليكم۔ کسی نے کہا ہے یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ بہت ہی عظیم ادارہ جنہیں ہم آپ جامعہ نبویہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ طلبہ ہیں، اور جو پیچھے ہیں وہ مقامی حضرات ہیں۔ یہ بازو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعراء اور علماء کی جماعت ہے۔ شعراء کرام کو سننے کی بہت کم عادت ہوتی ہے، سنانے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، تو ان کے اوپر اگر گرا گزر رہا ہو تو یہ تھوڑی دیر کے لیے گھوم کر آ سکتے ہیں۔ رہی بات جو طلبہ یہاں بیٹھے ہیں اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس بستی کے اندر الحمدللہ یہ علمی فیضان ہے۔ بے شک آج سے لگ بھگ 15 سال پہلے سے میرا یہاں آنا جانا ہو رہا ہے، جب عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی فیروز صاحب سے مدد اللہ العالی والنورانی کے ذریعے یہاں آنا جانا میرا ہوتا رہا، علاقائی سطح پہ بھی لوگوں کو دیکھا، تو بغیر علم کے یہ علاقہ بالکل بجھا بجھا ہوا اور تاریکی میدان میں یا کلیجے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ الحمدللہ اللہ و رسول نے اپنا خاص فضل فرمایا، اور عزیز گرامی حضرت قاری مفتی فیروز سلمہ پہ اللہ نے اپنا خاص فضل فرمایا کہ ان کے ذریعے آج اس پورے دیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے فیضان سے مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ابھی تک ہم آپ سب مل کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تہہ دل سے وعدہ کریں کہ دیتے رہیں۔ رہی بات تھوڑی بہت پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میری چند باتیں اب آپ بغور سماعت کریں۔ دیکھیے، ابھی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاضی نیپال مفتی عثمان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی تشریف آوری ہونی ہے۔ وہ لوگ اللہ و رسول کے فضل سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ عقل اور دانش مندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی اعلانسر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے پورے دیار میں یا کہہ لیجیے پورے ملک نیپال میں جب وہابیت سر چڑھ رہی تھی، انہوں نے اپنی سرپرستی میں
ایک ٹیم تیار کیا جس کے ذریعے آج ان کو ٹھکانہ لگا دیا گیا. اس میں اس فقیر کی بھی باری رہتی ہے جو اتوار کے دن ہمارا دن خاص مخصوص دن ہے. اور ایسے بھی آپ نے سینکڑوں تقریریں ہماری سماعت کیا ہے، مجمع چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح کے انتظام سرا میں بولنے کا موقع ملا ہے، اس لیے کیسے کیسے محسوس ہوتا ہے. تو وغیرہ آپ جانتے ہیں کہ جس میدان میں جس پہلو پہ صرف موڈ بن جانا چاہیے، انشاءاللہ وہ اچھی گفتگو کر لیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ صرف علمی میدان میں کچھ باتیں اس لیے کیا جائے، کہا جائے کہ جو کچھ عزیز گرامی مفتی فیروز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوئے گا، وہ سب قریب قریب ہمارے ساتھ ہو چکا اور اس کو ہم جھیل چکے ہیں. پریشانیاں جو آتی ہیں تو آدمی بڑا کام کرنے سے پہلے بڑے لوگوں کی سیرت پڑھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ نے مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں فرمایا. توجہ دیں گے میری بات پہ. اور ان سے زیادہ پریشانی کسی کو نہیں ہوئی، ان سے زیادہ پریشانی کا سامنا کسی کو نہ کرنا پڑا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا. سرکار فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ میں رویا اور دنیا میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا. اللہ اکبر. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ نے نہیں، جو دین کا بدترین دشمن کہلاتا ہے، جسے ہم آپ یہودی عیسائی کہتے ہیں، تو چونکہ رائٹر جو ہوتا ہے نا، رائٹر لکھنے والا کسی کی سیرت کسی کی تاریخ، تو وہ چاہے جتنا چپ چپا کر لکھے، لیکن جب تک وہ ٹھیک ٹھاک بات نہیں لکھے گا اس کی تاریخ مکمل ہو نہیں سکتی ہے. تو یہودیوں کا جو رائٹر ہے جس نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھا ہے، اس نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈر آف دی ورلڈ لکھا ہے، یعنی دنیا کا سب سے عظیم انسان، دنیا کا سب سے بہترین انسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ پریشانی ہمارے آقا نے جھیلا ہے اور سب سے زیادہ اعلیٰ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. انسانیت کے میدان میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ کردار کسی نے نہیں نبھایا ہے. میرے دینی سنی بھائیوں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا فرماتا ہے. لیکن یہ کم نصیبی ہے ہمارے یہاں کہ آپ میرا بھی حال دیکھ لیجیے. میں اپنی بات کرتا ہوں، مثلا مجھ کو تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ ادھر یہ ماسٹر صاحب بچے ہیں، یہ ہمارے قاری امان اللہ کے بڑے بھائی ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں، آپ اپنی جماعت میں تو رات دن سنتے ہی ہیں. تعلیم کا اصل مقصد ہے انسان اپنے آپ کو، اپنے اندر انسانیت لائے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا بنائیں، ستھرا بنائیں. اس میں جیسے اعلیٰ اخلاق پیش کرے، چگل خوری، عیاری، مکاری سے بچے، خود کو بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، کسی کی بےمانی نہ کرے، کسی پہ غلط الزام نہ لگائے. یہی چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا تو سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، جس میں پڑھنے کا ذکر آیا ہے، پڑھنے کا تذکرہ ہے. سب سے زیادہ پڑھنے پڑھانے کا کام جس امت کو، جس قوم کو سونپی گئی ہے وہ ہے مسلمان. مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم کام پڑھنا لکھنا ہے. اب آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ شروع میں جب اسلام پھلتا پھولتا شروعات ہوا تھا، جو مدینہ کی زندگی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے تو جو فدیہ دے کر چھڑا لیا، اپنے آپ کو چھڑایا، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے مکہ کے، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے مکہ کے، ان کے ذمہ یہ کام ہوا، ان کا فدیہ یہ ہوا کہ مدینے کے جو بچے، مدینے کے اندر جو بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، تو اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنا لکھنا مکہ ہی کے لوگ جانتے تھے پورے عرب میں.
मक्का ही के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो कहते हैं कि उनके जिम्मा ये काम हुआ कि मदीने के अंदर 10 बच्चे को वो पढ़ना लिखना सिखा दे। जब 10 बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएंगे उनको आजाद कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। जबकि गौर किया जाए हानी रज़ा साहब, तो उस वक्त चूंकि इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, गरीब लोग कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम को कबूल किए थे। और मैदान बदर का वाक़या तो मशहूर है कि बस चंद घोड़े और चंद तलवारें थी और बाकी लोग गरीब मिस्कीन लोग उसमें शामिल हुए थे। तो उस वक्त तो ये चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा दौलत से तलब किया जाता और तब उनको आजाद किया जाता, लेकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तालीम को और तालीम की अहमियत को बताया। अगर जाहिरी तौर पे हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़े, भूखे रहना पड़े, महल न बना सके, बड़ी बड़ी गाड़ियां न खरीद सके, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस न हो सके, तो कोई परवाह की बात नहीं है। बल्कि आप अगर ये चाहते हैं कि मुस्तकिल तौर पे आपको तरक्की मिले, मुस्तकिल तौर पे आपको लोग जाने, मुस्तकिल तौर पे आप पहचाने जाएं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप तालीम को आम कीजिए, तालीम से मोहब्बत कीजिए और तालीम को अपने सीने से लगाइए, तालीम से अपने माहौल को सजाइए, अपने महल्ले को सजाइए, अपने बच्चों को सजाइए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि उसकी तासीर और उसका मिठास देर पा आपको मिलेगा और फिर आपका मोहल्ला, आपके खानदान सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्म की रोशनी से हमेशा माला माल होते रहेंगे और उसका फायदा आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। शर्त यह है कि आदमी चाहिए कि इल्म से मोहब्बत करे। मैं ये बता रहा था कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए तय किया कि वो 10 बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा दे, फिर उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो उनका फिर यही तय हुआ। मैं इस बात से ये कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी ये चाहता है कि उसका खानदान, उसका मोहल्ला, समाज तरक्की करे, तो उसमें वो क्या इल्म की बूबा और इल्म का मिठास, इल्म की खेती बोए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके जरिए अल्लाह ताला उसे दीन और दुनिया की तरक्की अता फरमाएगा। खासकर मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने का हुक्म है। मैं आखिरी बात कहकर फिर चुके और बहुत सारे लोग हैं। मुफ्ती साहब क़िबला की तशरीफ आवरी, मुफ्ती साहब को लाया दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कुरान मुक़द्दस में सूरह नमल का नाम आपने सुना। सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है कौन? तो अल्लाह के बड़े ही मुअज़्ज़ज़ रसूल, मुअज़्ज़ज़ नबी हैं। और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक पे हुकूमत अता फरमाई है। आप अल्लाह के तमाम मखलूक पे हुकूमत किया। जहाँ इंसान पे आपने बादशाह की हुकूमत की, वहीं पे जिन्नात शैतान पे भी आपने हुकूमत की। यहाँ तक के चरिंद परिंद पे भी, जंगली जानवरों पे भी आपकी हुकूमत रही और समुद्री जानवरों पे भी आपकी हुकूमत रही। आपने ये सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं जाते, आजकल आपने देखा होगा लोगों को, बादशाहों को या मंत्रियों की सवारी को, तो आगे पीछे उसके गाड़ी लगी रहती है और बहुत सारे सिपाही साथ में होते हैं, फिर उनका आना जाना कहीं होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं निकलते, कहीं जाते, तो आप हवा को हुक्म फरमाते और हवा के ऊपर आपका तख्त बिछता और फिर आप उस पर तशरीफ फरमा होते और जिसको आप चाहते, इंसान में से, जिन्नात में से, जानवरों में से, सबको आप उस पर बिछाते और हवा को हुक्म देते जहाँ जाना होता। मसलन हिंदुस्तान से आप तो हवा आपको उड़ा कर ले जाया करती। बताते हैं कि वादी नमल एक मैदान है जहाँ चूटी ही चूटी, वहां से जब आपका गुजरना हुआ तो चूटियों की जो सरदार थी, तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे, तो
तो उसने चूटियों से कहा, अपने लश्कर से, चूटियों की जमात से, कि अंदर चली जाओ, सलमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में तुझे कुचल दे। कहते हैं कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर थे और आपने उतने दूर चूटी की आवाज आपने सुन लिया। हम सुन्नी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन बातों पे कोई एतराज नहीं है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों की समाअत को जितना चाहे, जैसे चाहे बढ़ाता है, जिसकी समाअत अल्लाह चाहता बढ़ाता है। बहरहाल हजरत सलमान अलैहिस्सलाम सुने, मुस्कुराए और आपने तख्त को वहीं उतरने का हुक्म दिया, वादी नमल में। फिर आपने चूटी को तलब किया, आपने उसको बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, चूटी के सरदार की बात सुनिए। वो चूटी कहती है, सरकार आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप गैब जान हैं, आप तो जानते हैं कि मैं इन चूटियों की सरदार हूँ, इसलिए मैंने इनको कहा अंदर चली जाओ। ऐसा क्यों कहा? क्या इसलिए कहा कि आप आ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपके साथ जो लोग हैं, चूंकि आपसे तो उम्मीद नहीं है, इसलिए कि आप मेरे सरदार हैं, आका हैं, आप बड़े हैं, अल्लाह ने आपको रुतबा अता किया है, तो आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं है कि आप मुझ पे जुल्म करेंगे, आपकी वजह से हम कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। यहाँ पे आपसे मैं ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारी कौम का सरदार बने, चाहे जिस हैसियत से बने, सामाजिक एतबार पे बने या इल्मी मैदान में वो हमारा सरदार बने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती उस्मान साहब ने मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए बैठ जाए, बैठ जाइए इत्मीनान से, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुफ्ती साहब के बेलक तशरीफ लाए, आप सब इनका दीदार करें। हाजी जलालुद्दीन साहब के बेलक ये जलवाबार हैं और दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। आप हमारी तरफ तवज्जो दीजिए, आने वाले जो मेहमान आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए जो लोग हैं वो हैं, आप उनके लिए जहाँ इंतजाम किया है वहाँ उनको आप अदब एहतराम से बिठाएं। इधर तवज्जो दीजिए, कारी तहसीन साहब इधर देखिए, आपको तो इधर बैठना चाहिए था। वो चूटी कहती है कि सरकार आप तो मेरे सरदार हैं, हर सरदार को चाहिए, चाहे वो टोले मोहल्ले का जो हो, चाहे वो झोला छाप नेता ही क्यों ना हो, जो कि आजकल देख रही हैं तमाम माहौल को बिगाड़ा जाता है तो वो सरदारों से। अगर अल्लाह ताला ने इल्म दे दिया, अगर वो आलिम हाफिज कारी वाइज मुफ्तियाने कराम कौम के सरदार हो गए, लोग उनसे उम्मीदें अच्छी अच्छी उम्मीद बांध लेते हैं, मगर फिर देखिए तो उनके जरिए ऐसी ऐसी बातें सादिर होती है कि टोले मोहल्ले में गलत तरीके से मैसेज जाता है। तो ये हमारे सरदार से हरगिज़ अगर सामाजिक एतबार से जैसे हमारे गांव में मुखिया जो होते हैं उनसे लोगों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, उनको चाहिए कि अपने आप को वो ऐसा साबित करें कि देखने वाले लोग ये समझे कि ये हमारा सरदार है, हमारे लिए बुराई नहीं कर सकता है। और बताते हैं कि चूंकि ने कहा कि आप हमारे आका हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो भी आपके सोबत में रहते हैं, इसलिए उनसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर हो सकता है बेखबरी में कुचल दें, इसलिए मैंने कहा है कि तुम लोग अपने अपने ठिकाने पे चली जाओ ताकि हमें कोई तकलीफ न हो। इससे ये भी अंदाजा लगाया जाए और सुना जाए, सीखा जाए कि जो लोग बड़े लोगों के करीब होते हैं उसके ये फिक्र होते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने किरदार गुफ्तार से टोले मोहल्ले के लोगों को या अपने माँ तहतों को किसी तरह की दिक्कत न पहुंचाए, किसी तरह का तकलीफ न पहुंचाए, ताकि उन्हें या उनका दिल न दुखे और हमारा माशरा खराब न हो। अगर हम अहले इल्म कहलाते हैं, हमने पढ़ा लिखा है, तो हमारे किरदार गुफ्तार से हमारे किसी को भी किसी तरह का तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने ही ऐसा क्यों कहा? तो वो चूटी जवाब देती है, सरकार आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ने इन सब का सरदार मुझे बनाया है, और मेरे होते हुए अगर ये कुचली जाए तो मेरी सरदारी कैसी? अल्लाह मुझसे मुआखजा फरमाएगा और मुझे जवाब देना होगा। इसलिए मैंने इनसे कहा कि तुम अपने ठिकाने पे पहले चली जाओ ताकि
ये कुचली न जाए और अल्लाह ताला के यहाँ हमसे मुआखजा न किया जाए। सुभान अल्लाह। जरा जी लगा करके ये सुभान अल्लाह। अगर आपने मुकम्मल तौर पे ध्यान से मेरी बात नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। देखिए यहाँ नहीं लोगों की मजलिस ऐसी है जहाँ वक्त दिया जाता है उस वक्त हम लोग नहीं पहुँचते हैं। हम लोग इसलिए नहीं पहुँचते हैं कि वक्त पे पहुँचना परेशान समझते हैं, समझते हैं कि बाद में जाएंगे तब हम सबसे बड़े कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि वक्त पे पहुँचा जाए और थोड़ी देर की जो मजलिस होती है वो सबसे ज्यादा जानदार शानदार होती है। इसलिए आप बाहर की दुनिया की सैर कीजिए। बड़े बड़े स्कूलों में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में वक्त तय होता है, उस तयशुदा वक्त से 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पहले लोग पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ बड़ा तफरी आने जाने का माहौल नहीं होता है। जो कुछ सुनाया जाता है लोग सुनते हैं और समझते हैं और उससे कोई न कोई अच्छी बातें निकलती है जिससे वो 1-2 साल पूरी जिंदगी उससे नफा कमाते हैं। अगर आपने नहीं समझा तो अब समझिए। मौलाना अख्तर साहब आप जरूरत से ज्यादा बिजी लग रहे हैं और आपकी वजह से जरूरत से ज्यादा ये खराब हो रहा है। किनारे किनारे से जाइए आइए। मैं सुना ये रहा था कि देखिए अगर मेरी गुफ्तगू को आप नहीं सुन सके समझ सके तो अब समझ लीजिए उसका मार हासिल। मैं जो बात कर उसका मतलब मकसद ये है कि अल्लाह ताला हमें इल्म के जरिए, दौलत के जरिए, तकवा के जरिए शोहरत अता फरमाता है। हम सरदार हो जाते हैं तो हमें चाहिए कि अपनी सरदारी से लोगों को फायदा पहुंचाए। हमें क्या चाहिए? मुझसे बोलो। अपनी सरदारी से लोगों को फायदा पहुंचाए। अपने सरदारी से अगर अपने खानदान का, अपने समाज का, अपने टोला मोहल्ला का फायदा न हो सका तो हमसे ज्यादा मफलूकुल हाल कोई नहीं हो सकता है। अब रही बात, आखिरी बात सुनिए कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये रुतबा, दर्जा, मर्तबा, शान कैसे दिया, क्यों दिया? तो उसकी वजह ये है, कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर दुआ फरमाते, मौला मुझे ऐसी शोहरत अता फरमा जो तूने किसी को न दिया हो। मौला मुझे ऐसी दौलत अता फरमा जो तूने किसी को न दिया हो। बार बार यही दुआ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया और फरिश्ते आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने दौलत रखा गया और कहा अल्लाह के नबी आपने दुआ किया लीजिए, ये अल्लाह की तरफ से दौलत आई है। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने शोहरत पेश किया गया और कहा लीजिए आप दुआ करते थे अल्लाह मुझे ऐसी शोहरत दे जो किसी को न दिया हो, अल्लाह ने शोहरत भेजा है। फिर थोड़े वक्फे के बाद इल्म पेश किया गया, इल्म, और कहा कि अल्लाह के नबी ये लीजिए ये इल्म है और अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है। तवज्जो से सुनेंगे। मसलन इस मजलिस में चाय, पान, सिगरेट तीनों चीज पेश किया जाए तो आप जिसको चाय पसंद हो उनको कहा जाए कि भाई कोई एक चीज लीजिए 3 चीज में से, तो कोई एक ही चीज जिसको चाय पसंद होगी वो चाय लेंगे, फिर पान और सिगरेट नहीं ले सकते हैं, है ना? यूं तो सिगरेट पीना ही बुरी बात है, किसी भी हाल में नहीं पीना चाहिए। ये गुटखा जो खाते हैं लोग, इससे भी हमारा माशरा खराब होता है, इससे भी आप बच्चे। बहरहाल कहना यह है कि कोई एक चीज लिया जाए। हजरत सुलेमान को अख्तियार दिया गया 3 चीज में से एक चीज लीजिए। दौलत लीजिए तो शोहरत और इल्म आपको नहीं दिया जाएगा, और अगर शोहरत लीजिएगा तो दौलत और इल्म नहीं दिया जाएगा, और इल्म लीजिएगा तो दौलत और शोहरत नहीं आपको मिलेगी। आपने जब इल्म को देखा आप झूम गए और कहा वाह सुभान अल्लाह, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तो मैंने तलब ही नहीं किया था। कहे फरिश्ते अल्लाह ने इल्म भेजा है, दौलत शोहरत तो ले, मैं इल्म पसंद करता हूँ, दौलत और शोहरत तुम ले जाओ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं रही। सुभान अल्लाह। जी लगा करके ये सुभान अल्लाह कहते हैं कि जब आपने ये पसंद किया, फरिश्ते ने दौलत और शोहरत से कहा चलो अब तो अल्लाह के नबी ने तुझे पसंद नहीं किया, तेरी दौलत और शोहरत का जवाब सुनिए, तवज्जो से सुनिए और इस बात को आप अपने दिल में बसाए रखिएगा। कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब दौलत को पसंद नहीं किया, शोहरत को पसंद नहीं किया, फरिश्ते ने कहा चलो। दौलत और शोहरत ने बेक जुबान होकर कहा कि अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के नबी ने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन अल्लाह ने जब मुझे पैदा फरमाया तो हुक्म फरमाया कि दौलत और शोहरत सुन ले, जहाँ जहाँ इल्म जाएगा वहाँ वहाँ तुम्हें जाना होगा, जहाँ जहाँ इल्म होगा
शोहरत को रहना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जो आदमी इल्म पढ़ता पढ़ाता अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद पढ़ता है पढ़ाता है, अल्लाह ताला उसे इल्म की बरकत से, इल्म के जरिए दौलत और शोहरत सब कुछ अता फरमा देता है। इससे हमें ये भी अंदाजा लगाना चाहिए कि जो चाहते हैं दौलत इज्जत शोहरत वो पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दे दिया है, अल्लाह उन्हें दौलत और शोहरत दे तो आपको कैलकुलेटर लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। रातों दिन हिसाब करना, ये कहाँ से लाया, वो कहाँ से लाया, ये कहाँ खरीदा, वो कहाँ खरीदा, करते करते मर जाएंगे। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने वादा फरमाया है कि अहले इल्म को अल्लाह दौलत और शोहरत सब कुछ अता फरमाएगा। मुझसे जितना बन पाया मैंने कोशिश किया कि इल्म के बारे में आपसे आगाही करूं। अब अगला प्रोग्राम जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको समाअत करनी है। देखिए मुफ्ती साहब कबीला जलवाबार हैं, कारी जलालुद्दीन साहब हैं और दीगर अहबाब जो आए हैं। अब अगला प्रोग्राम क्या है? मुफ्ती साहब कबीला आएंगे, समाअत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।